السلام علیکم وعلیکم جناب. السلام، پہلے آپ کا استقبال ہے شریف بھائی. بہت شکریہ بھائی. پہلے تو آپ لوگ وعلیکم تین السلام. ہیں. آپ لوگ تو تین ہیں. یہ جی یا تو آپ یہ جو صلاح الدین اور امین بھائی ہیں ان کو ایڈ کر لیں, یا ان میں سے کسی ایک کو ایڈ کر لیجیے, کیونکہ میں اس طرح کیا آپ لوگ تین ہیں اور میں اکیلا ہوں, یہ میرے ساتھ اس طرح نہیں ہو سکتا. میں سوری ٹو سے اچھا یہ اشرف بھائی، آپ ٹھیک کا ہے نام ٹھیک ہے، کیا ایسا ہے اور کرتے آپ ہیں. کہاں سے ہے؟ میں میوٹ کر لیتا ہوں بھائی، میں میوٹ کر کے چلے جاتا ہوں. نہیں. پھر بھی کوئی نہ کوئی بات بیچ میں آ جاتی ہے جس پہ بولنے کا دل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یا تو آپ اچھا کسی ایک شریف کو اندر بھائی، ڈالیے. آپ میں پاکستان سے ہوں, آپ کا نام ہوں. بتائیے. نام سیم ہے. ٹھیک نام سیم. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا دیکھیے، ابھی آپ کو اگر بات کرنا ہے نا، قرام بھائی میوٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنی بات رکھیے، سچ والا جی آپ کی بات کا جواب دیں گے، لیکن اگر آپ ٹاپک سے یہاں وہاں جائیں گے تو پھر میں آپ سے پھر بیچ میں آ کے بات کروں گا. جی اپنی بات رکھیے. اچھا, پہلے تو آپ نے یہ ایک آیت بتائی. آپ نے کہا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنا چاہیے کہ نہیں. دیکھیے نہیں قرآن جو ہے, ٹاپک نہیں کیا ہے آپ نے آپ یہ کہا دیکھیے. یہ دیکھیے پہلے تو آپ ٹاپک کے میں وہ ڈاؤٹ کلیئر کروں. سر آپ سنیں گے؟ بہت جی شکریہ. بتائیے. اچھا آپ سنیے، دیکھیے ایک بات. آپ کا نام کیا نام ہے آپ کا؟ اشارف اشریف ہے. بھائی ہے. اچھا جی اشریف جی صاحب اشریف، ہاں. ٹھیک ہے. کہ سب سے پہلے تو جو کوشچن ہے، جو ٹاپک ہے، اس کا جواب دیجیے. اس کے بعد یہ میں دیکھیں آپ کی دوسری آپ کا, باتوں کا بھی جواب دوں گا. ہاں آپ کا جو یہ بات آپ نے کی کہ جی آپ قرآن سے پروف کریں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی تھی. میں آپ کو ڈائریکٹلی تو نہیں بتا سکتا, ٹھیک ہے, پھر کیسے کیونکہ بتائیں گے؟ پورے قرآن سنیے, جی جی صبر کا دامن پکڑے رکھیے. میں بول رہا ہوں. جی 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 صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن جو ہے ہمارا, تو اس میں اگر آپ جائیں سورہ نساء میں آیت جی نمبر 136 جی میں لکھا ہوا ہے, او مومنو, جی اللہ پر ایمان رکھو اور جی اس کے رسول پر ایمان رکھو, جی اور جو کتاب اس نے اپنے رسول پر بھیجی ہے جی اس پر ایمان رکھو. جی اب مجھے ایک آپ بات بتائیے کہ کسی نے ایک کمنٹ لکھا تھا, یہاں پر آیا تھا بڑا کہ اس وقت تو زیادہ تر لوگ موزس اور جیسس پر ایمان رکھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. جی کس اس وقت؟ اس کس وقت وقت یعنی کی جب بات محمد کرتے صلی ہیں؟ اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو یہودی اور کب کرسچن آئے زیادہ تھے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بھی اب میں آپ کو بتاؤں یار, اتنی تو نالج آپ کو ہونی چاہیے نا نہیں یار. دیکھیے میرے سامنے قرآن کا ٹیکسٹ ہے اور آپ بات کر رہے ہیں قرآن کے ٹیکسٹ کی. کون کب آیا تھا قرآن اس کو بالکل نہیں جانتا. اب آپ اپنی مرضی سے بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی. تو یعنی آپ کو ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، ہسٹری سے میرا ہسٹری کوئی مسئلہ نہیں میرے ہے. سامنے قرآن کا ٹیکسٹ ہے. دیکھیے قرآن کا ٹیکسٹ ہے. آپ کی جو بھی بات ہے اس کے ٹیکسٹ جو ہے آپ کی بات کو انڈورس کرنا چاہیے. تو میں آپ کو قرآن سے بتاؤں, یا پھر میں آپ کو ایک بات جب ہو رہی ہوتی ہے نا تو آپ اس کو غور سے سنا کریں, جی ٹھیک ہے. میں نے جی کس چیز کو ریفر کیا تھا, میں نے کہا تھا ایک کمنٹ آیا تھا جس کو آپ لوگوں نے ادھر پریمیئر کر کے دکھایا تھا. اس کمنٹ میں لکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت زیادہ تر لوگوں کا ایمان یہودی اور موزس اور جیسس پہ تھا, ٹھیک ہے. تو اچھا یہ یہ کیسے بات جو ہے ثابت؟ خود قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ یہ سر پھر وہی بات, پھر میں کون سی کسی بات اور کروں میں؟ یار نہیں، جو اللہ کے کمنٹ بندے جو آپ ہے اس کو نہیں دیکھیے, سنیے میرے بھائی, کہ جو کچھ کمنٹ میں لکھا ہے میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے یا جو کچھ قرآن کا ٹیکسٹ ہے وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے؟ آپ بتائیے. سر یعنی پھر آپ لوگ یہ جو کمنٹس آ رہے ہیں نا آپ کے یوٹیوب پر, یہ بھی آپ پھر پریمیئر نہ کیجیے, ان کو ہٹا دیجیے. بھائی ظاہر اس بات میں جو کمنٹ لکھنے والے میں تو کچھ بھی ان لکھیں کو گے نا ریفر بھائی, کر رہا ہوں, میرے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا امپورٹنٹ نہیں ہے نا, پکی جی بات ہے, جی پکی بات ہے, بس صحیح. جی اب انڈائریکٹلی ٹھیک ہے، میں آپ آپ کو بات بتا دیتا بتائیے اپنی. ہوں, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 136, اللہ پر جی ایمان رکھیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھیں, ٹھیک ہے. جی پھر آتی ہے سورہ فتح, ٹھیک ہے, جی دا وکٹری, سورہ جی نمبر 48 آیت نمبر 9, اللہ پر ایمان جی رکھو جی اور اس ہاں کے ہاں جی رسول پر ایمان رکھو, اور اس کے نہیں اوپر جو آپ کہے گا ایسا اس پر کریں, ایمان رکھو. اس کا ڈائریکٹ ٹیکسٹ پڑھیے آپ. جو ڈائریکٹ عربک ٹیکسٹ ٹیکسٹ پڑھیں گے ہے تو قرآن کا وہ چلتا پڑھیے آپ. اس کا ترجمہ یا جو ہے آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں, ڈائریکٹ ٹیکسٹ آپ پڑھیں کو آپ. عربی آتی ہے؟
عربی آتی ہے آپ کو؟ جی ہاں بھائی جو ہے آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو جو ہے آپ مجھے سکھا دینا، لیکن جو ہے آپ اس کا اوریجنل نہیں، میں ٹیکسٹ آپ سے پڑھیے. پوچھ رہا ہوں آپ کو آتی ہے نا؟ جی آتی ہے، ٹھیک ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ جی والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ ومن وملائکتہ یکفر نہیں ہے، وکتبہ ومن ورسولہ. یکفر ہے وہ، ومن یس، یکفر ہے. یکفر. جی یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. تو جی کیا لکھا ہے یار؟ اس کیا پر لکھا ہے ایمان آپ رکھو. بتائیے، اور کس او پر یی ایمان ہو رکھنا؟ بلیو، بولیے آپ بتائیے کس پر ایمان رکھنا ہے. آمنوا جی باللہ. جی اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور اس کے اور آگے کیا لکھا ہے؟ ہاں، اس کے آگے کیا ہے اس اور میں؟ and the scripture which he had sent to his messenger. اور جو اس جی نے اپنے رسول پر بھیجا ہے. تو اس میں جی سوچنے والی کیا بات کون ہے سے یار؟ رسول پر؟ بھائی قرآن کا رسول کون ہے؟ الکتاب کا رسول کون ہے؟ الکتاب کا رسول کون ہے؟ جی آپ مجھے بتائیے، آپ کے لحاظ سے کون ہے؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں، میرا سوال ہے آپ ارے سے. سر میں میں تو آپ سے پروفٹ سوال محمد کر صلی رہا اللہ علیہ ہوں وسلم کہ کا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہوں دیکھیں، ایک تو ہم کو سوال جو کیا گیا ہے ایک بار میں پھر دہرا دیتا ہوں آپ کہ قرآن نامی الکتاب کیا واقعی پیغمبر محمد کو دی گئی؟ یہ ہے سوال. تو اس کا ہاں دی جواب گئی، ہے آپ کے پاس؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کو میں نے جو ہے بول تو قرآن دیا کے ہاں دی ٹیکسٹ سے گئی. جو ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا نا. اچھا، پھر اس طرح تو بھائی میں آپ کو توحید بھی نہیں وہ نہیں کر نہیں سکتا. بھائی، توحید کی بات ہی نہیں توحید کر کا رہا ہوں لفظ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. آپ دیکھیں سے جو سنیے، سوال ہے دیکھیے یا تو آپ کہہ سر. دیجئے. سر سچ والا سنیے بھائی، میری بات، سچ والا بھائی، آپ میرے تو بھائی یا میرے پھر بھائی آپ جب ریلیٹ کر سکتے ہیں کسی اور چیز سے تو میں بھی ریلیٹ کر سکتا ہوں کسی اور چیز سے. آپ ہی میں کو حق دیا کسی گیا اور کہ سے آپ بھی ریلیٹ ریلیٹ نہیں کر کر رہا سکتے ہوں، میں صرف قرآن کے ٹیکسٹ سے ریلیٹ کر رہا ہوں، صرف اور صرف قرآن کے ٹیکسٹ سے. میں کسی اور کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ہیں. اچھا چلیں قرآن کے پھر ٹیکسٹ سے یا تو آپ یہ کہہ دیجئے صاف صاف کہ ہاں بھائی قرآن کے ٹیکسٹ میں اس سوال کا جواب نہیں ہے، صاف صاف کہہ دیں. یا اگر ہے تو بتائیے. میں یہ بالکل نہیں ہے کہوں گا تو کہ بتائیے، سوال کا جواب نہیں ہے. سوال کا پھر جواب کیا ہے ہے لیکن بتائیں. اگر ہے تو دیجئے نا جواب پھر. انڈائریکٹلی ہے. اچھا چلیں صحیح ہے. نہیں فرض کر انڈائریکٹلی، آپ انڈائریکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی سے کیا مراد ہے سر آپ کی؟ سر جی انڈائریکٹلی پورے قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے نام سے بولا گیا. رسول، کیوں رسول میسنجر. کیا صرف محمد ہیں؟ اچھا کیا بتائیے. قرآن میں رسول صرف محمد کو کہا گیا ہے؟ جی، رسول بہت سارے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے، لیکن پھر میجورٹی کے لحاظ سے کس کو کہا گیا نہیں ہے وہ تو میجورٹی. دیکھیں آپ. اچھا سنیے ذرا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول میجورٹی میں جس لفظ کو کہا گیا ہے اس کو آپ مانیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ پھر یہ آپ کہنا چاہ رہے جیسس ہیں؟ پر ماننے کی اجازت عیسیٰ نہیں پر نہیں ایمان نہیں, رکھنے کی. نہیں میں کچھ نہیں، میں اپنی طرف سے آپ کے جو آپ نے جو کہا میں اسی کا جواب دوں گا. ہاں آپ یہ سر. کہنا چاہ رہے ہیں کہ میجورٹی رسول جس لفظ کو کہا گیا ہے، کیا آپ کے نزدیک وہ جو ہے دلیل بنے گی؟ وہ دلیل بنے گی؟ سچ والا بھائی اب آپ سنیے گا. جی جی فرض فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ میں یہ کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ جی میں عالم فاضل انسان تو ہوں نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لگتے ہیں، آپ مجھے لگتا ہے حافظ قرآن بھی ہیں. آر یو؟ نہیں دیکھیں کہ میں ایک طالب علم ہوں، سر. سر اگرچہ کہ پلیز. میری عمر جو ہے 57 ہاں ہو چکی ہے، میں طالب جی علم ہوں، میں جی قرآن کا طالب علم بالکل ہوں. صحیح. ہر کوئی ہوتا میں نے ہے. ہاں. پورے قرآن کے ٹیکسٹ میں 20 بار یعنی اس سوال کو ڈھونڈا ہے. مجھے کہیں بھی میرے اس سوال کا جواب نہیں ملا. میں نے یہ سوال اب علماء اسلام کے سامنے رکھا ہے کہ کوئی علم رکھنے والا کوئی شخص آئے اور مجھے اس سوال کا جواب دے اور مجھے ہدایت کا ذریعہ بنے. اچھا پھر آپ مجھے ثابت کر دیجئے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری نہیں گئی تھی. چلیے کریے. دیکھیں میں نے تو یہ بیٹھا کہا ہی نہیں، اچھا میں نے تو یہ نہیں کہا، ایک منٹ میں نے تو یہ سچ کہا ہی والا نہیں. جی. دس از قرآن بھائی پروونگ اے آپ نے نیگیٹو. بولا تھا آپ. نہیں ایک منٹ اشاری اچھا بھائی ذرا قورام تھوڑا بھائی، سا. ہاں وہ ان کو میں ہے نا وہ ہاں پتہ نہیں آپ سے لگتا کچھ پرابلم ہے ان کو.
मैं उनको एक नहीं नहीं चीज पूछता हूँ, एक मिनट। प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं कोई है, सुनिए रेशियल सुनिए। रेसिज्म का है क्या कुछ ऐसा कि मैं भाई मैं कोई अल्लाह के लोअर कास्ट का हूँ क्या बंदों, भाई, मैं कोई लोअर कास्ट का हूँ सैयद? नहीं नहीं अच्छा नहीं 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 नहीं, मैं अशारिफ ये नहीं भाई, कह दो रहा, दो नहीं सेकंड, अब सुनिए अच्छा कुरान 10 भाई, सेकंड बोलता हूँ। पहले आप ये जी सुन जी जी, लीजिए, ये सुन लीजिए बस। आप लोग हाँ हाँ, 3 हैं, मैं अकेला हूँ, पिछले भाई तो भी आए, आप लोग 3 थे, वो अकेले थे, या तो क्या फिर हुआ आप भाई? किसी को ऐड कर लीजिए या आप में से कोई एक बोले नजरुल भाई बस। को ऐड कर लो भाई, नजरुल भाई को ऐड कर लो ना, नजरुल हक है वहां पे, उनको ऐड कर लो। साहिल भाई नहीं नहीं, नजरुल भाई एक को मिनट ऐड कर लो। कोराम भाई, नहीं फिर वो बात है ना कोराम भाई, वो बात नहीं होगी, एक मिनट। अच्छा अच्छा भाई अच्छा। आप है ना, अशरीफ भाई, आप एक भी है ना, तो आपको जवाब कुरान से देना है। आप किसी के ऐड होने से आपको क्या वो जवाब आ जाएगा? नहीं, यहाँ और प्रूविंग है देखिए नेगेटिव, यहाँ पे आपने, कुरान से हटके बात हो गई ना, यहाँ पे ही टेलिंग अस टू हाँ प्रूव अ नेगेटिव। तो अशारिफ भाई एक ही सवाल है आपसे, फिर मैं म्यूट कर लूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो है डायनासोर आपको अंटार्कटिका में मिलेंगे, और आप बोल रहे हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि कैन यू प्रूव दैट देयर आर नो डायनासोर्स इन अंटार्कटिका? ये एब्सर्ड सवाल होते हैं, इसको बोलते हैं प्रूविंग ए नेगेटिव। तो आप जो खेल रहे हैं ना, ये प्रूविंग हाँ ए हाँ, नेगेटिव का है, जो नहीं चलने वाला है। तो मैं बस इतना ही तो फिर बोलूंगा, तो इसका ये मतलब, सवाल ही गलत है आपका, आपका सवाल ही इसका गलत है। मतलब इसका मतलब फिर ये जरूरी थोड़ी है कि उधर डायनासोर अच्छा, नहीं है, आप हो मेरे भी मेरे सकते हैं। बैंक अकाउंट में, नहीं नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, आप पूछ रहे हैं कि 1 करोड़ कैसा है, मुझे सबूत दीजिए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप प्रूफ करिए कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ नहीं है। ये नहीं होता ऐसा है, दिस इज कॉल्ड एज प्रूविंग ए नेगेटिव। ऐसा नहीं होता फिलोसफी में। आप ऐसा अगर देखिए, मैं चलो अल्लाह ना चाहे बोल के हमारे पास एक रिटोरिकल उर्दू में बोलते हैं, अल्लाह ना चाहे कि आप कभी किसी लीगल हैसल में फंसे, लीगल बोले तो किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना फंसे, चाहे इंडिया का कानून हो या पाकिस्तान का कानून हो। कभी भी किसी जज के सामने ऐसा दावा ना करे, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, सीधा सीधा रिजेक्ट कर देगा आपकी अर्जी। चले गए वो तो, समझ गए, हाँ समझ गए हाँ, वो। नहीं नहीं, क्या है ना साहिल भाई, दिस इज अ वेरी बैड गेम हाँ दैट दे प्ले, कि कभी भी किसी अच्छा, भी है लीगल है जगह वो, पे। एक अच्छा मिनट, तो ले लीजिए ना, एक ले मिनट, लीजिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अशारिफ भाई एनी टाइम, मैं एक बस एक एडवाइस के लिए बोल रहा हूँ कि कभी भी जो है ना, कभी भी किसी कोर्ट कचहरी में ये मत डालिए कि नेवर ट्राई टू प्रूव अ नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ अ जज। सीधा सीधा अर्जी काट देगा आपकी, निकाल देगा बाहर, बाहर कर देगा सीधा। बिकॉज ये बहुत ही एब्सर्ड सवाल होता है, ये सवाल ही नहीं होता है। तो इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे तो फिर तो चलते रहेगा ये तो मसला। तो मैं बस इतना ही जैसे बोल रहा हूँ, पिछले चल रहा था आगे ना, क्या कैसा चल जैसे रहा था। पहले देखिए चल रहा था आचार्य अकबर भाई के साहब, साथ। अच्छा अच्छा, अकबर भाई के फिर साथ मैं तो आपसे कभी पूछता खत्म हूँ। नहीं, अकबर भाई के साथ तो वेरी, इट वाज वेरी क्लियर, अकबर भाई वाज वेरी क्लियर इन हिज क्वेश्चनिंग। आपके साथ जी क्लैरिटी नहीं, कोहराम आई एम जी, वेरी सॉरी। अच्छा कोहराम जी, मैं अशारिफ साहब से ये पूछूंगा कि देखें, मैंने तो ये नहीं कहा ना कि कुरान मोहम्मद को नहीं दी गई, मैंने तो ये नहीं कहा। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि ये आप मानते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं क्या क्या वाकई कुरान नामी अल किताब पैगंबर मोहम्मद को दी गई? मैं तो जानना चाह रहा हूं, मैं सवाल कर देखें रहा अगर हूं। आप मैंने तो ये नहीं कहा अगर कि आप ये नहीं दी गई, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। देखें, अगर आप लोग ये भी फिर एब्सर्डिटी में आता है कि आप लोग सिर्फ पूछ रहे हैं कि जी रेफरेंस मटेरियल जो आपके पास है उसी में से निकाल के दो। अब फर्ज करें तो आप जाहिर बात है यूनिवर्सिटी किससे में, निकालना पड़ेगा? सुन अच्छा अच्छा, लीजिए सर, सुनिए मेरी बात। सर प्लीज जी प्लीज आप जी बोले, मैं खामोश रहा, जी आप बोले मैं खामोश रहा, अब मैं बोलूंगा। बहुत शुक्रिया। तो होता ये है कि जैसे कि अकबर नाई ने बोला, आप हदीसों के रेफरेंस करें, हदीस की तरफ क्यों नहीं जाते आप लोग? क्यों क्योंकि जाऊं वो हदीस की कुरान में तरफ में? नहीं है भाई। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, सर सर सर, मैं क्योंकि फिर अब उनको ये शिकायत हो जाएगी कि एक वक्त में 3 बंदे उनके साथ। देखें, कोई एक जो है बात करें प्लीज, जी सच क्योंकि वाला जी, फिर आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, ये जो है, फिर ये इख्तिलाफ, ये इतराज हो सकता है। ठीक है, बात सही है उनकी जी जी कि एक वक्त जी में एक बंदे से एक ही शख्स कंक्लूजन तक जो है बात करे। ठीक है, जी उसके बाद हम कुछ और जी। डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोई एक शख्स आए तो उससे एक ही लेकिन शख्स बात अगर ये सच वाला जी, अगर ये टॉपिक से हटेंगे ना तो फिर मैं टॉपिक से फिर हटेंगे भी तो जो है, इंटरफियर। मैं उनको बोलूंगा कि देखें आप टॉपिक से हट रहे हैं। ठीक ठीक है, है, आप बात करिए सच वाला जी, जी जी। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, आप बात करिए। तो देखें अशारिफ साहब, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम हदीसों को क्यों माने? जी ये आप सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20 निकालिए। जी, उसमें क्या लिखा है? आयत पढ़िए आप। और जो ईमान रखते हैं, या अय्युहल लजीना, और जो तुम में जी से ईमान रखते हैं, जी
आमनु अतिउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लु अन व अंतुम तस्माउन, और वला obey Allah तवल्लौ and व his अंतुम messenger. तस्माउन, जी ठीक है Yes, जी। obey Allah and his क्या कहा messenger. गया? अच्छा, कौन है मैसेंजर? अल्लाह को हम लोग किस तरह, तो वही नहीं नहीं, बात, अच्छा ठीक है, यानी अल्लाह का मैसेंजर कौन है? अल्लाह का मैसेंजर कौन? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अच्छा जितने ठीक भी है। पहले आए अच्छा वो। सुनिए सुनिए, यहाँ पहले की बात नहीं हो रही, सुनिए, यहाँ पहले और बाद की बात कहीं भी कुरान में नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद के साथ रसूलुल्लाह आया है ना? अगर आप नहीं जानते तो मैं कहूँगा पूरे कुरान में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है, और पूरे कुरान में लफ्ज मोहम्मद के साथ रसूलुल्लाह 2 बार आया है। अगर आप ये दावा करते हैं कि रसूलुल्लाह से मुराद सिर्फ मोहम्मद है, तो मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहता हूं कि पूरे कुरान में रसूलुल्लाह ईसा के लिए 3 बार आया है। तो मैं रसूलुल्लाह से मुराद ईसा क्यों ना मानूं? तो आप ये मानेंगे कि ये जो किताब है वो हजरत ईसा के लिए इस्तेमाल की गई है? देखें, मैं आपको बताऊं कि ईसा के लिए कुरान कह रहा है कि वआतैनाहुल किताब, यानी ईसा के लिए अल किताब है, मूसा के लिए अल किताब दी गई, ये तो बार बार कुरान कह रहा है। लेकिन मोहम्मद को अल किताब दी गई, पूरा कुरान खाली पड़ा है, इससे कहीं एक जगह भी कोई जिक्र नहीं, किसी एक जगह भी कोई जिक्र नहीं है। लफ्ज मोहम्मद के साथ ना तो कोई अल कुरान है, ना तो कोई अल किताब है, ना तो कोई मौजिज़ा है, ना तो आयात बय्यिनात है। इस तरह के दावों से पूरा कुरान खाली पड़ा है। आयत है यार, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो पूरी आयत है, सूरह मोहम्मद। तो क्या मतलब कोई, सुनिए, पूरी आयत सिर्फ मोहम्मद पर है? मतलब यानी देखें, पूरी दूसरे जो रसूल हैं उन पर आयतें नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, हजरत मरियम पर है, ठीक है जी। सूरह ईसा है कोई, सूरह ईसा नाम की कोई आयत? देखिए, मैं बात सूरह ईसा की नहीं कह रहा हूँ, सूरह मूसा नाम की है, बात यूसुफ है, सूरह मूसा नाम की है, इब्राहिम है, सूरह यूसुफ है, इब्राहिम है, सूरह ईसा और मूसा है। आप मुझे पहले ये बताइए। नहीं, आप सुनिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो है जिस लफ्ज पर जो है सूरत है उनको मानना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं यूसुफ को मान लूंगा, 1,24,000 मैं कहूंगा कि रसूलुल्लाह से मुराद जो है यूसुफ है। हाँ, सही कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बात खत्म। जो है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल से मुराद जो है वहां पर यूसुफ है, मैं ये कहूँ तो आपको क्या एतराज है? ठीक है, आप कहें, मैं कहूंगा कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल हजरत मूसा अलैहि सल्लम। लेकिन बात यही है ना, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है जो कह रहे हैं कि रसूल से मुराद सिर्फ मोहम्मद है, तो इसकी क्या दलील है आपके पास कि रसूल से मुराद सिर्फ मोहम्मद है? नहीं, फिर मैं अपनी स्टेटमेंट कमेंट करूंगा। आई एम सॉरी इफ आई सेड दैट, आई एम सॉरी। अच्छा, आपको मालूम है, आप जरा हिस्ट्री में जाके देखिए, आप खुद जो है तलाश कीजिए, या फिर किसी भी आपके आलिम से पूछिए जिसे सूरत मोहम्मद कहा गया है, उस सूरत का असल नाम सूरत अल क़िताल है। आप जाके किसी अपने आलिम से पूछिए, सही कह रहे हैं, उसका नाम असल मोहम्मद नहीं है, उसका असल नाम तो अल क़िताल है। इसको बाद में लोगों ने जो है मोहम्मद नाम रखा। तो आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो फिर यानी बाद में लोगों ने अगर नाम चेंज किया है, तो हमारे पास तो वही स्क्रिप्चर है जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पास से चल रहा है। कहाँ है? उमर के जमाने का जो है पूरी दुनिया में कुरान कहीं पाया जाता है, आपको मालूम है? सर, कुछ कुरान की हिस्ट्री के बारे में पता है? क्योंकि आप एक दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। अगर उस पे टॉपिक मुझे बताइए। सर, देखिए, अब मसला यहाँ आ गया है कि आप कह रहे हैं कि जी मैं रखूंगा, मैं मानूंगा यूसुफ पे, आप मानो मोहम्मद पे, कोई मसला नहीं, मानने की बात ही नहीं हो रही। देखिए, मैं जानना चाह रहा हूँ, आपका ये दावा है कि रसूल से मुराद मोहम्मद है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक मिनट सचवाला जी, 1-2 वर्ड जरा अशराफी भाई, अच्छा नहीं दिखता। देखिए, आपकी उम्र क्या है मुझे मालूम नहीं, 57 ईयर ओल्ड। ऐसा अच्छा नहीं दिखता कि किसी बड़े के साथ यार तू ऐसा क्या, यार ऐसा क्या, ऐसा ठीक मैंने तू तड़ाक नहीं किया सर।
میں سر نہیں سر کر यार کے आपने بات کر رہا ہوں बोला और आप नहीं کر کے नहीं بات कर रहा हूँ. आप यार बोले हैं वो यार अच्छा निकल नहीं लग जाता रहा है, आप देखें यार निकल जाता ठीक है, है भाई मैं लेकिन आपको बोल आप रहा और हूँ सर बड़े करके अदब मैं से बोल पूरी रहा तरह हूँ से रिस्पेक्ट देने की कोशिश आपको कर मैं रहा हूँ. अदब से बोल रहा हूँ मैं आपको अदब अच्छा से बोल ठीक रहा है, हूँ ऐसी बात अच्छा ये ठीक तो है, जरा अच्छा थोड़ा जबान पे जरा अच्छा अच्छा ये सुनिए, नहीं थोड़ी ठीक जरा है, ठीक है, कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं नहीं। क्रॉस टॉक बहुत हो रही है यहाँ पे क्रॉस टॉक हो रहा है यहाँ पे तो एक जने एक ये वक्त में देखें, बात हम कर जो सकता है ही बोल देखें हमारे आशारिफ साहब, यानी देखें कि यहाँ हम बहस मुबाहिसा करने नहीं बैठे ना, यहाँ ये हम इसके लिए भी नहीं बैठे कि जो है मैं किसी को हराऊं, कोई मुझे हराए, नहीं, ये मुनाजरा नहीं है, ये डिबेट नहीं है, ये सवाल है और जवाब दिया जाना चाहिए। ये हम सवाल कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है कि क्या कुरान नामी अल किताब पैगंबर मोहम्मद को दी गई? इसका अगर आपके पास जवाब है तो प्लीज दीजिए, नहीं तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको कुरान जबरदस्ती में नहीं से ही है। चाहिए, आपको कुरान में से ही चाहिए, सीधी सी बात है, जाहिर मैंने बात है की कुरान के टेक्स्ट से जो है मैं देखूंगा ना, क्योंकि सिर्फ मैंने कुरान से आपसे चाहिए, ये बता दिया कि सिर्फ कुरान के जी. टेक्स्ट को मैं किसी तर्जुमे, किसी तफसीर, किसी हदीस, किसी फिक़ा, किसी तारीख की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कुरान के टेक्स्ट को 20 बार बड़ी गहराई से गौर से देखा है, मुझे इस सवाल का जवाब कहीं भी नहीं मिला। अगर आपके पास जवाब है तो कुरान के टेक्स्ट के अंदर मुझे बता दीजिए कि देखें आपने जो देखा वो गलत था, ये मैं सही बता रहा हूं कि कुरान के टेक्स्ट में ये सवाल का जवाब है, मुझे बता दें, बात खत्म। सर आपको कुरान में से चाहिए, क्या चीज? अब इजहार कुरान में से कुरान में चाहिए. तो कहां से लूंगा? अगर इसका जवाब मैं जो है भगवत गीता में से लूंगा, नहीं, आप मैं जो फिर पूछ कहां रहा से हूँ आप लूंगा? हाँ या ना कहें ना सर. नहीं, जाहिर बात है कुरान के टेक्स्ट की तो बात कर रहा हूं ना मैं, बार बार वही तो बात कर रहा हूं ना मेरे भाई। वही फिर सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2. हाँ तो क्या है उसमें? और वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाती, और जो यकीन रखते हैं और सही रास्ता अपनाते हैं. देखिए मैं पढ़ देता हूँ वो आयत में पूरी पढ़ देता हूँ। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाती व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। ये है सूरह मोहम्मद की, जो कि अल क़िताल जो उस सूरत का असल नाम था, इसकी दूसरी आयत। अब आप बताइए इसमें क्या 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 कहा गया? व आमिनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, व आमिनू नहीं है, व आमनू है। मैंने आमनू बोला सर. आमिनू और आमनू में बहुत फर्क होता है। यस सर, आमनू जी यस सर, आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम जी। अब इसमें आप मुझे समझाइए, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? बिलीव इन द रेवलेशन सेंट डाउन टू मुहम्मद. अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूँ, कर दूं? मैं करता हूँ। वल्लज़ीना, और वो जो आमनू ईमान व आमिलू ईमान लाए, हाँ ईमान लाए, और वो लोग जो ईमान लाए व आमिलुस्सॉलिहाती, जिन्होंने अच्छे काम किए यानी नेक अमाल किए, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला, और यकीन रखा जो नाजिल किया गया। नहीं, पहली बात को जो है जब आप आमनू कह रहे हैं तो जो है वो ईमान लाए, तो फिर जो है दोबारा भी वही कहें, और ईमान लाए जी बिमा नुज़्ज़िला, जो कुछ नाजिल किया गया मोहम्मद पर, जो कि हक है उनके रब की तरफ से। जी बिल्कुल सही। इसमें क्या बात कही गई? अब आप बताइए इसमें क्या बात कही गई? नाजिल किया गया। अब मेरे लिहाज से तो ठीक है भाई, मोहम्मद पर क्या नाजिल किया गया? ये क्योंकि माजी मजहूल का सिगा है, यहाँ पर माजी भी है मजहूल भी है। मोहम्मद पर क्या नाजिल किया गया? आप पाकिस्तान से, आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है। नहीं भाई, मैं कहीं से भी हूँगा, सुनिए मेरी बात। क्या मतलब भाई, हिंदुस्तान में उर्दू नहीं बोलते हैं क्या? नाजिल क्या नाजिल किया? जरा हमारे कोहराम भाई प्लीज प्लीज प्लीज, अभी आप मुझ पे चढ़ रहे थे, हमारे जो है आशारी, देख सुनिए, जो भी आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ कि देखिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दू बदू जो बात हो रही है ना, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है लफ्जों में। मैं आपकी से दुगनी तिगनी उम्र का हूँ शायद, लेकिन मैं आपकी किसी बात पे एतराज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, यहाँ हम एक बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सवाल कर रहा हूँ और आप जवाब देने के लिए आए हैं। आपने सूरह मोहम्मद की जो दूसरी आयत पेश की है, उसमें जो कुछ कहा गया मैंने बता दिया। इसमें ना अल कुरान है ना अल किताब है।
अब आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? बिमा नुज़्ज़िल अला मोहम्मद, यानी मोहम्मद पर जो कुछ नाजिल किया गया, क्या नाजिल किया गया? पूरा कुरान इससे खाली पड़ा है, कोई डिफिनेशन, कोई क्लैरिफिकेशन कहीं कुछ नहीं बताई गई, कुछ भी नहीं है भाई। फिर मैं इतना ही कहूंगा। अब होता क्या मालूम है आचार्य जी, जरा सुनिए। अब यहाँ आमतौर पर क्या होता मालूम है, आप किसी भी ट्रांसलेशन को उठा लेंगे, भले उर्दू का हो या इंग्लिश का हो, जो भी हो, उसके अंदर जो है हमारे मुतरजमीन, हमारे तर्जुमा करने वाले क्या करते हैं मालूम है, वो जहां भी ये आता है वो एक ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर अपनी बात, अपना अकीदा डाल देते हैं। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है ना, कि देखें कि जब तक मुसलमान कुरान की टंग या कुरान की जो लिसान है उसको डायरेक्टली समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक ये सारा मामला चलता रहेगा ऐसे ही। उलमा और जो है ये मुतरजिमीन और मुफस्सिरीन अपनी डंडियां जो है, अपनी अपनी बांसुरी बजाते रहेंगे, मुसलमान उनके पीछे दौड़ते रहेंगे, क्योंकि कुरान का एक्चुअल टेक्स्ट क्या है मुसलमान नहीं जानते। 99.9% लोग तर्जुमे की बैसाखियों पर चलते हैं, आपको पता है? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा यही अर्ज करना है, मैं आपसे भी, आप जैसे नौजवान हैं, मैं आप जैसे नौजवानों की बड़ी कदर करता हूं, मैं उनको हौसला दिलाता हूं कि देखो भाई, आप जो है बजाय मानने के जानने की कोशिश किया करें, अपनी आंखों से, अपनी जो है कानों से ये अकीदत की पट्टी हटाएं और फिर जो है डायरेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जो है किसी चीज को जानने और समझने की कोशिश करें। सर मैं इतना बोलूंगा कि अभी ना मुझे आपकी समझ में आ रही है और बेशक ना मेरी आपको समझ में आएगी, ठीक है? मैं इतना बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं अगर सीधी सी बात, मैं क्या नहीं समझा, जरा बताइए। यस सर 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 मैं जाने वाला हूँ, मुझे निकलना है कहीं, मैं जल्दी से रैप अप करके इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम होगी तो उसमें आने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आप होंगे अगली स्ट्रीम में? सैटरडे और ट्यूसडे को होती है शायद, मैंने देखा था कहीं। हाँ होती है, हाँ रहूंगा मैं, होती आइए आप है, जरूर। तो इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में आने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिल वक्त मैं अगर आपको सीधी सी बात बताऊं तो ये टॉपिक ऐसा है जिसका जवाब अगर आप बोलें कि डायरेक्टली ही कुरान में से दिखाओ तो नहीं दिखाया जा सकता जी। आप कम से कम इस बात को, इसका कम से कम एतराफ तो कर लेना, क्योंकि देखिए ऐसा है कि एतराफ जो है दरअसल इल्म की बुनियाद होती है, यहीं से इल्म हासिल होता है। जो आदमी जो मतलब एतराफ नहीं करता ना, उसके अंदर कभी इल्म नहीं आता। आप समझे बात? एतराफ करें, हाँ भाई ये नहीं है, तो कम से कम आप खोजेंगे, आप इसकी गहराई में जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, यही तो होगा ना। जब आपने मान लिया तो फिर आप जानेंगे क्या? कुछ भी नहीं, बात खत्म हो गई। आप समझे मेरी बात? मैं दरअसल यही नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आप जैसे नौजवान आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़े प्यार से, देखें कि ऐसा है कि जो है मैं बड़े प्यार से उनसे मैं जो है ये दरख्वास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप जानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। भाई पहले जान लें, उसके बाद माने ना। समझ गया आप जानने के बाद में जिस नतीजे भी आप पहुंचेंगे उसको मान ले, जरूर माने आप, मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है? आप जाइए, अच्छा लगा आपके आने का, अच्छा लगा, आप फिर आइए जरूर, हम फिर बात करेंगे। जी मैंने आपसे ये बात तो मान ली, एतराफ कर ली कि इसका जवाब डायरेक्टली मैं आपको कुरान में से नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सलाम। अशारिफ भाई आपका शुक्रिया। अशारिफ भाई यार, हमको मार मार के उर्दू पढ़ा यार, तुम बोलते हो यार इंडिया से उर्दू नहीं आती है यार, मार खा के उर्दू सीखे। मैंने सर यार सारे आराम भाई, मैंने कभी नहीं बोला था इंडियंस को उर्दू नहीं आती, मैंने बोला था पाकिस्तानी जो हैं वो बनिस्बत इंडिया के, मैंने पाकिस्तानियों में ज्यादा देखा है वो उर्दू ज्यादा बोलते हैं और अच्छी बोलते हैं, साफ बोलते हैं। इंडिया में बड़ी अच्छी, नहीं इंडिया में भी बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं भाई, इंडिया में बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। यहाँ पे ये एक परसेप्शन गलत है। नहीं, मुझे अपने बचपन के मार याद आ गए यार, आप ऐसे बोले हो यार, बचपन में मार के मौलवी साहब के मार याद आ गए, मुझे पूरी कुटाई याद आ गई। वो तो मौलवी साहब थे ना, पूरी पॉपुलेशन आपकी उर्दू थोड़ी बोलती है, हमारी तो पूरी पॉपुलेशन उर्दू बोलती है। नहीं, पंजाबी भी बोलती है भाई, छोड़ो यार। ठीक है, ये जो है बाद में बात करेंगे, दूसरे भी लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे बात कर। जी जी, कोशिश करिए अशारिफ भाई कि अगर आपके राब्ते में कोई आलिम है, अगर आप उनको ला सकते हैं स्ट्रीम में तो बहुत अच्छी बात होगी वो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ।